about the function, there are two parts of a function. First is function declaration. Second is function Function call. calling. Yes. And third one is function definition. That means you have to define the function. Hmm. Right. Whatever the way you have declared the function, in the same way you have to define the function. Usually function declaration should be always the first. So suppose if you are writing in the void main function, so before declaration of a variable you should declare the function. Let us say I wish to declare the function of mean. What is the output of mean? It may be floating point value, so I can declare it as a float, and Hmm. name of the function is mean. Now how to calculate the mean, what you require? So you require the data point. So let us, you are storing the data into the x, so float x square bracket, that is called array. And how many observations? To n observation, so n is a integer. So Integer. this is a declaration. Now after somewhere, after declaring this, you are using the function, let us say x bar equal to mean, because you have already entered the x and n, so x and n, so this is called function calling. And then your program is over, get ch. After completion of this end of the void main bracket, you have to declare the function. Defining the function. Sorry, Yes. define the function. That is same, it is a, we have declared as a float, so it is a float. Name of the function remains the mean. Here you can give, instead of x you can give other variables, so because they are called the formal argument, it can be anything, but the type of the argument remain the same. So let us, I am giving the same. You can give the different name, there is no issue, but x square bracket is needed, integer is needed, and let us say n. There should not be semicolon in the function definition, and then within that you can write the program of a mean and then return. Suppose you have stored the mean here, average as a variable you have taken, and you have stored the mean, average is equal to sum divided by n, where you have calculated in sum the sum of all, so you have to return the value average, Okay. and Got it. this value will be supplied to this caller, Hmm. and then it will calculate x bar likewise. Okay. Okay, sir. I So got it. the best way, the best practice is that the function definition is always end of the void main. Okay. Okay, sir. Yes. Anyone else? Any query? Someone was talking about the Bartlett. Who was telling Bartlett test? किसका था Bartlett test? दिशा पटेल का था सर। वो कहाँ है? प्रेजेंट है? दिशा? वो बोल नहीं रही सर अभी। तो आपकी कोई तकलीफ है, क्वेरी है तो बताएंगे तो क्या है कि सबको पता चलेगा। दिशा है ही नहीं। और ये अभी आप सबको रोल नंबर मिल गए हैं, फाइनल रोल नंबर, तो आपकी प्रोफाइल में उस हिसाब से चेंज कर दीजिएगा, so that I can easily recognize. दिशा है तो सही। दिशा, are you there? Yes, sir. I just joined.
ओके, हाँ बोलिए, आपका बार्टलेट का था। यस सर। हाँ, तो बार्टलेट की फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे, तो मैं आपको उसको प्रोग्राम कैसे करना है बताता हूँ। एक मिनट, मैं पीडीएफ ओपन करती हूँ असाइनमेंट। Bartlett has the formula. It is in the form of chi-square. Chi-square equal to some formula. I don't remember the formula. You just suggest me the formula so I can tell you in what way you have to. हाँ सर, एक बोलो। मिनट। So whenever you write any program, first you should know all the formulas. If the formula is with you, then you have to simply break the formula and calculate each हाँ, and every component, and then you have to. chi square इज इक्वल टू, Yes, यस बोलो। यस सर, कैपिटल N माइनस के N minus k. Okay. माइनस के ln एस पी स्क्वायर ln s p square पी स्क्वायर, हाँ, माइनस पूरा माइनस है ना, सिग्मा आई, हाँ, समेशन आएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू के, 1 to k हाँ समेशन एन आई माइनस 1, ni, स्मॉल ni या कैपिटल यस स्मॉल एन आई, स्मॉल ni minus 1 ln एस आई स्क्वायर ln si square। ठीक है, होल अपॉन टू, होल अपॉन हाँ, 2 वन प्लस, 2 इन ब्रैकेट। नहीं नहीं टू नहीं, नो टू नहीं, तो क्या है, कैंसिल करो टू, होल मैंने अपॉन कैंसिल 1 किया, प्लस होगा सर। वन वन 1 प्लस प्लस वन प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 3 के, 1 अपॉन 3 3 इंटू के माइनस 1 k minus इंटू 1। के माइनस 1, नाउ न्यू ब्रैकेट में मतलब होल यहाँ पे इंटू, k minus 1 के पास ही ना। नहीं नहीं नहीं, पूरा 1 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, हाँ, होल इंटू, ठीक है, इनटू होल, हाँ, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के 1 to k 1 अपॉन एन आई माइनस 1 1 upon ni minus 1 एन आई माइनस 1 माइनस minus 1 अपॉन एन माइनस के 1 1 upon, अपॉन एन माइनस के, बराबर। यस ठीक जी, है, ठीक है। हाँ तो फॉर्मूला आप देखिए जो भी है कैलकुलेट हाँ, कीजिएगा। अभी उसमें देखो n क्या है, तो n मेरे ख्याल से होगा n इज इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू k स्मॉल एन आई। ठीक है, हाँ, फिर एस आई यस, स्क्वायर क्या है, इट इज 1 अपॉन एन आई माइनस 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ऐसा है। एक्स आई माइनस एक्स बार होल ठीक है, स्क्वायर, यस, इट इज लेटेस्ट से एक्स आई की जगह पे यहाँ पे एक्स एल कह देता हूँ, एल एक्स एल रनिंग फ्रॉम 1 टू एन आई। ठीक है, एस पी स्क्वायर क्या होगा, जी सर, इट इज ए व्हाट इज एस पी स्क्वायर, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल 1 टू के 1 अपॉन एन माइनस 1 हाँ 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू हम्म, एन आई माइनस 1 इंटू एस आई स्क्वायर, एन आई माइनस 1 ठीक है, इंटू एस आई ये स्क्वायर, फॉर्मूला है पक्का। हाँ तो व्हाट यू रिक्वायर, हाँ, अब अपॉन में एन माइनस आएगा सर, आ गया ना एन माइनस 1, पर मेरे सम में फिट नहीं हो रहा था, क्या, तो मैंने एन माइनस 1 ले लिया, ठीक है, ये टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस 1 है, यहाँ पे समेशन एन आई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ठीक है, वो जो भी है फॉर्मूला में एन माइनस के था पर मैंने 1 ले लिया,
एन माइनस के, हाँ हाँ नीचे के आएगा, वन नहीं आएगा, सही बात है, एन माइनस के, क्योंकि यहाँ पे हाँ एन आई, के summation ni मतलब capital N and summation 1 repeat how many time k time, तो it is a k, so that is a n minus k। ठीक है, ये पूल्ड मतलब क्या है, के सबका समेशन का यस स्क्वायर करो, डिफरेंस का xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, और जितने भी हाँ ऑब्जर्वेशन है उनका सब करो सम एंड हाँ डिवाइड बाय n माइनस k करेंगे तो यू विल गेट sp स्क्वायर, पूल्ड वेरिएंस बोलते हैं इसको, सिंपल वेरिएंस। अब इसमें तो व्हाट हाँ यू सर रिक्वायर, फर्स्ट स्टेप यू रिक्वायर एंटर द वैल्यू ऑफ ni। कैसे एंटर करेंगे, एक फोर लूप ले लो, एन आई ठीक है, यूजिंग द ओके फोर लूप। कितनी बार है, तो हाँ आई रनिंग फ्रॉम 1 to k, तो ये फोर लूप कहाँ तक जाएगा, k तक, 1 to k ठीक है, और एन आई एंटर कर रहे हैं, 1 to k उसी तक के हाँ अंदर ही आप n प्लस इक्वल टू n ऑफ i कर दो, और n इक्वल टू इंटीजर में 0 असाइन कर दो, हाँ तो सम भी हो जाएगा। यहाँ पे इंटीजर में n ब्रैकेट आपको ये भी देना पड़ेगा, i भी है, आप n ब्रैकेट लेटस से 5 दे दिया, तो ये सब आपको देना पड़ेगा ना इंटीजर में। तो ये हो गया, n हो गया। अब आपको कैलकुलेट यस करना सर है कि हर एक का ऑब्जर्वेशन एंटर करो, तो 4 i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू k, i प्लस प्लस। अब उसके अंदर आपको दूसरी लूप डालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हर एक का ऑब्जर्वेशन आएगा ना आपका, ये एस आई है तो ये क्या है एक्चुअली, एक्स आई एल माइनस एक्स आई बार स्क्वायर आयत का है, और उसके अंदर एक्स आपको हाँ फोर लूप करके एक एंटर करो, लेटर से एल इक्वल टू 1, एल लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ आई, आई इक्वल टू 1 है तो आपने n1 एंटर किया, आई इक्वल टू 2 तो n2 है, तो यहाँ पे जितने ऑब्जर्वेशन है तब तक घूमेगा वो, एंड देन l प्लस प्लस, ठीक है। हाँ और फिर आपको सी इन एक्स आई एल, यहाँ पे आपको एक फ्लोट में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, फ्लोट, तो एक्स फाई या एक्स फाई, यहाँ पे 10 दे दो, तो 5 ग्रुप है, हर एक में 10 ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ऐसा हुआ, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये एंट्री हो गई, उसमें ही आप सम ले लो, इसके अंदर ही एस ऑफ आई क्या आएगा, तो एक यहाँ पे मीन ले लो, मीन एक्स आई दे दो, एक्स की जगह पे आप दे दो एम आई, तो एम यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, एम आई प्लस इक्वल टू एक्स आई एल, तो क्या होगा, आई एथ ग्रुप का आपका सम आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, वो सम आ गया तो उसकी उसी लूप के अंदर आपको मीन निकालना है, तो मीन का आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा वो वेरिएबल्स आपको इसमें देना है, ठीक है। तो मीन आपने कोई वेरिएबल दे दो, लेटेस्ट से मीन ऑफ आई, मैं ऐसा मीन आई दे रहा हूँ, मीन ऑफ आई क्या है, इट इज ए एम ऑफ आई डिवाइड बाय एन ऑफ आई, एम के अंदर आपका सम है, सपोज एम, या यहाँ पे क्या दिया था हमने, वेरिएबल एम दिया है, एम दिया है, ठीक है। तो ये एम क्या है आपका, जिसमें सम आपने स्टोर किया है, ये एन आई है, तो ये मीन हो गया, फिर ब्रैकेट लगा दो, तो ये आई की लूप खत्म हो गई, सॉरी एल की, हाँ ये आई की खत्म हो गई, ऊपर एल की खत्म हो गई, तो ये सम हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, हर एक का वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस क्या है, आई इक्वल टू 1, आई हाँ लेस देन इक्वल टू के, आई प्लस प्लस, और फिर आपको क्या करना है, एस आई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो एस टू आई इज इक्वल टू, तो पहले आपको सम करना पड़ेगा किसका, हर एक ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का, तो यहाँ पे आपको फिर से फोर लूप के अंदर ही जाना पड़ेगा,
हाँ for L equal to 1, L less than equal to n of I, L प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे आपको सम जो भी है उसमें लेटेस्ट से एस ऑफ आई, एस टू आई, ठीक है, स्क्वायर ऑफ आई ऐसा करके, व्हाट इज दैट, प्लस क्या करेंगे, एक्स आई एल माइनस आपने मीन निकाला है किसमें, मीन ऑफ आई इंटू एक्स आई एल माइनस मीन ऑफ आई, ठीक है, ये सम हो गया। और फिर नीचे जैसे आई की लूप खत्म होती है एस टू हर एक में, ये खत्म होने के बाद एस टू आई इज इक्वल टू, वापिस आप करो एस टू आई, इसमें सम है, डिवाइड बाय आप क्या करो एन आई माइनस वन, हो गया। तो ये आपका इंडिविजुअल जो वेरिएंस है वो सब मिलेगा, ये वाला। हाँ सर। कहाँ गया ये कर्सर, एक मिनट, ये वाला, ये सब मिल गया। तो इसके बाद तो ये सीधा फॉर्मूला ही लगाना है, पूल्ड वेरिएंस की फॉर्मूला ये है, एस आई स्क्वायर आप जानते हो, फोर लूप लगाओ और एन आई माइनस वन इंटू एस आई स्क्वायर अपॉन एन हाँ माइनस के, पहले सम कर लो, एस टू पी इज इक्वल टू समेशन, ठीक है, प्लस ऐसा लिखने का, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब फॉर्मूला को हमेशा तोड़ने का और फिर उसको जोड़ने का, प्रोग्राम अपने आप होता है। ये है एस ओके सर। पी, एस टू पी प्लस इक्वल टू, उसको इनिशियली जीरो दे दिया है, क्या लिखो, एन ऑफ आई माइनस वन इंटू एस टू आई, ये हो गया सम। यहाँ पे फोर लूप घुमा लो हाँ आई की, खत्म। और फिर बाद में एस टू पी इज इक्वल टू एस टू पी, क्योंकि इसमें सम है, हम रीअसाइन कर रहे हैं उसको वेरिएंस में, डिवाइड बाय एन माइनस के, ये आपका पुल्ड हो गया। अब काई स्क्वायर की फॉर्मूला यूज करो, सी एच हाँ एल इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला सीधा जो आपका है वो रखो, एन माइनस के, अभी आप एल एन है तो लॉग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो इट इज ए एन माइनस के, आपने एन पहले था, के आपने एंटर किया है, लॉग ऑफ पूल्ड वेरिएंस कहाँ पे है, एस टू पी में है, माइनस, यस ठीक है। फिर ये वाला रखो समेशन वाला, तो इसको आप हर एक चीज को एक एक जगह में क्वांटिटी में कैलकुलेट रख दो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, जैसे कहाँ गया कर्सर, हाँ इसको ए कह फर्स्ट दो, ठीक है, ए कैपिटल है, बी सी डी, इसको बी कह दो, ए माइनस बी हाँ, अपॉन वन प्लस सी इंटू डी। इसको इसको पूरा हाँ सी सर कह दो ना, बात खत्म हो गई, ए माइनस बी अपॉन सी करो, पूरा। आपको मिल गया, ओके बस। ये काई स्क्वायर हाँ मिला, फिर इसकी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कंपेयर करना है, तो कौन सा है काई स्क्वायर विथ एन माइनस के ही है, टेबुलेटेड वैल्यू कौन सा है, तो जो एग्जांपल आपने सॉल्व किया होगा उसके अंदर होगा, तो टेबुलेटेड वैल्यू इंसर्ट करो, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ हाँ टेबुलेटेड वैल्यू, फिर इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन दिस टेबुलेटेड, रिजेक्ट एट नोट अदरवाइज एक्सेप्ट, तो रिजेक्ट हुआ इसका मतलब दी पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट सेम, एक्सेप्ट हुआ तो पॉपुलेशन वेरिएंस सेम है, हाँ ठीक है। अब हो जाएगा आपसे, हाँ इतना आपको हाँ समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने काफी मेहनत, ओके सर। यस, नेक्स्ट, हाँ सर नेक्स्ट किसको क्वेरी, थैंक यू सर। वेलकम, यस नेक्स्ट, हेलो सर, 11 में भाग्यश्री। हाँ लिवेंस में प्रोसीजर क्या है, लिवेंस की सर फॉर्मूला है उसमें, नहीं फॉर्मूला है, टेस्ट लेकिन प्रोसीजर। उसमें लिवेंट टेस्ट अप्लाई करते हो उससे पहले आपको जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं, लेटेस्ट से y11, y12, y1 के, सपोज आपके पास के ट्रिक हर एक में के ऑब्जर्वेशन है, अच्छा ना, ये y21, y22, y2 के, एंड सपोज यू विश टू कंपेयर दी, लेटेस्ट से यहाँ पे के की जगह पे क्या करें,
ये करो, हम के यूजुअली यूज करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, आर कह दो, ठीक है। एंड ये क्या है, वाई के वन, वाई के टू, वाई के आर। तो ये आपकी पहली ट्रीटमेंट के डेटा है, व्हेन यू हैड अप्लाइड द फर्स्ट ट्रीटमेंट तब के डेटा है, ये सेकंड के है, एंड ये टेस्ट ट्रीटमेंट है। एंड आपको कंपेयर करना है 11th टेस्ट में कि वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट, वेरिएंस ऑफ द सेकंड, वेरिएंस ऑफ द केथ आर सेम और नॉट। जो बार्टलेट में किया है सेम टेस्ट कर रहे हैं, बट 11th में बार्टलेट में रहता है कि डेटा नॉर्मल है। सपोज डेटा आपका नॉर्मल नहीं है तो यू हैव टू गो फॉर द 11th टेस्ट। तो ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोलिए, बाद में तो लास्ट में तो क्या करते हैं, ये अरेंजमेंट सर हो एवरी जाती है ऑब्जर्वेशन की, इसके बाद तो यस सर उसमें एनओवाई करते हैं, सीआरडी। बताइए इसमें क्या सर करते हैं, फॉर्मूला है पर कौन सी फॉर्मूला है? W इज इक्वल्स टू n माइनस के समेशन। ओके, फॉर्मूला लिखते हैं। मैं तो ये हमेशा बाटलेट ये 11th बच्चों को ऐसे ही सिखाता हूँ, क्योंकि एनोवा हम जानते हैं तो क्यों अननेसेसरी नया सीखे। ठीक है, आप बताओ, डब्ल्यू इक्वल टू n माइनस के कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल कैपिटल एन माइनस के समेशन समेशन के आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 1 n आई स्मॉल एन n आई, आई। हाँ यहाँ स्मॉल n आई। नहीं यस सर होगा, बाजू में यहाँ ऊपर क्या आएगा, के है, के आएगा। ऊपर के आएगा। हाँ, स्मॉल एन आई स्मॉल n आई ब्रैकेट ब्रैकेट z आई जेड आई माइनस माइनस z कैपिटल जेड होल स्क्वायर होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाय कैपिटल K माइनस 1 समेशन के आई इक्वल टू 1। क्या, के आई इक्वल टू 1। यस सर। ये आई इक्वल टू 1? हाँ ऊपर के नीचे आई इक्वल टू 1। इसको आई इक्वल टू 1 टू के बोलते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, देन समेशन एन आई ऊपर नीचे z इक्वल टू 1। ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे, समेशन आई इक्वल टू 1 टू के। अभी दूसरा समेशन लिखना है। हाँ सर। हाँ, नीचे क्या है, z इक्वल टू 1। जेड इक्वल टू 1, फिर स्मॉल j सॉरी सर जे स्मॉल j जे इक्वल टू जे एंड ओके, ऊपर जे स्मॉल n आई एन आई, ठीक है। एंड यहाँ ब्रैकेट हम्म, ब्रैकेट सर हाँ बोलो बोलो, ब्रैकेट z आई j माइनस जेड बार माइनस z आई माइनस जेड आई। आई होल स्क्वायर। एक्चुअली ये क्या होता है, इन एनोवा दिस इज अ ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, और नीचे आता है एरर सम ऑफ स्क्वायर। ठीक यस है, सर। हम ऐसे चलते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे जेड आई क्या है, z व्हाट इज जेड आई? तो जेड आई एवरेज होगा या सम होगा? यस सर समय एवरेज z आई इज एवरेज एवरेज है, तो इट इज जेड आई जे अपॉन z एन आई, आई j हाँ एन आई जे, ठीक है। n आई आई यस रनिंग सर फ्रॉम 1 टू एंड z के, जेड इज नथिंग बट डबल एवरेज, इट इज ए summation I running z from इक्वल 1 1 बाय to समेशन 1 1 बाय k जेड आई अपॉन के। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डबल समेशन जेड आई जे अपॉन अपॉन n समेशन आई एन आई, कैपिटल तो कैपिटल नहीं हो गया। अब बताओ कि जेड आई जे क्या है, व्हाट इज जेड आई जे? मीन ऑफ ऑल जेड सर आई जे ये तो वेरिएबल होगा, व्हाट इज जेड आई जे?
सर इट इज जेडाई जे ऑब्जर्वेशन हो गए, लेकिन जेडाई जे हो गए कुछ सब्ट्रैक्ट किया हुआ पता नहीं, वो आपको बताना सर पड़ेगा। जेड इज डेथ ऑब्जर्वेशन एंड आयत ग्रुप। बराबर है, लेकिन फिर आयत ग्रुप मैंने ये वही y1 y12 लिखा था, आपने z बताया। अच्छा ऐसा है। डेटा आपने लिया होगा ना फॉर्मूला में कैलकुलेट करने के लिए। नहीं सर अभी नहीं लिया है। हाँ तो वो लेना पड़ेगा ना, ये z11 z12 अप टू zn1, फिर ये क्या है z21 z22 अप टू zn2। लाइकवाइज आपके पास zk1 के ग्रुप है, zk2 अप टू zkn पे, यही आपके पास है। ये यस। ऑब्जर्वेशन हो गया, तो आपको एंटर करने पड़ेंगे ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। पहले तो एंटर करो क्या, ओके सर। फर्स्ट इन यू हैव टू एंटर दी के नंबर ऑफ ट्रीटमेंट और नंबर ऑफ ग्रुप। सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर दी वैल्यू ऑफ एन आई रनिंग फ्रॉम 1 to k। ये सब एंटर हो गया, यहाँ ही कैपिटल एन कैलकुलेट कर लो जो अभी आगे सिखाया था फॉर्मूला में, यस। आई इक्वल टू 1 to k एन आई। थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, आप एंटर करो जेड आई एल, वेर आई रनिंग फ्रॉम 1 to k। अभी आगे जो लूप बताई उस हिसाब से एल हाँ रनिंग फ्रॉम 1 to एन आई, ठीक है। यस डेटा सर। एंटर हो गया, फिर सेम उसमें जो किया वैसे ही इसमें भी करना है आपको। ये बाटलेस टेस्ट। हाँ वैसे ही सेम सेम ही जा रहे हैं ना। ओके सर। फिर उसमें भी काई स्क्वायर है अपने में, आपको भी यस। टेस्ट कौन सा है, काई स्क्वायर है लास्ट में। नहीं सर एफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो एफ है ना, इसलिए ये जेड आई जे आपका सीधा नहीं आएगा। जेड आई जे मेरे ख्याल से हर एक का उसमें बाटलेट टेस्ट में पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। ओके वो आप देखिए, आपने जेड आई जे में वो सीधा ऐसा ही छोड़ दिया उसको, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके इसमें सर। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक जो लिखा है इसमें, ये जो है मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, वो आपको देखना पड़ेगा। ये जो है हर एक का शायद मीडियन निकालना पड़ेगा, इसका इसका इसका, और हर एक ऑब्जर्वेशन को मीडियन से सब्ट्रैक्ट करना है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। दैट इज योर जेड आई जे मेरे ख्याल से। तो जेड आई जे होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई आई जे माइनस आइदर वाई आई होगा या मीडियन होगा। तो हर एक का आपको निकालना पड़ेगा मीडियन शायद, ठीक है। और वो मीडियन जो मिला वो हर एक ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन उसका एब्सोल्यूट मिलेगा, दैट बिकम योर जेड आई जे। फिर वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यही थोड़ा आप में एडिशनल है 11th में बाटलेट के कंपेयर में, ओके सर। ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो उससे पहले एक मैन्युअली एग्जांपल सॉल्व करो। व्हेन यू यस। सॉल्व द मैन्युअल एग्जांपल देन यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर कि हाउ टू प्रोसीड, और फिर उसको आपको लैंग्वेज के कोड में आपको ट्रांसफर करना है, ओके सर। ठीक है। यस नेक्स्ट। सर मेरा सर परसेंटाइल वाला, सर परसेंटाइल की अगर कोई सर वैल्यू आ गई, जैसे कि सर अगर 2.66 आया या फिर, तो अगर सर कंप्यूटर कैसे समझेगा कि उसको सेकंड वैल्यू प्लस 0.66 इंटू थर्ड थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू करना है। सपोज आपको नहीं पता है कौन सी वैल्यू है, ठीक है। जी सर। जैसे लेटेस्ट से अभी आपको 2.6 ऑब्जर्वेशन है, अभी लेटेस्ट ये यस सर। जनरलाइज आपको करना पड़ेगा। तो वो कैसे है, सपोज आपका आंसर 2.6 पोजीशन में आ रहा है, यहाँ पे डेटा आपने अरेंज किया है x1 x2
x3 अप टू x10, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो इस दोनों के बीच में कहीं पड़ रहा है। तो x2 यस सर। प्लस सम पार्ट ऑफ दिस, तो कितना है वो 6 पार्ट है। तो इसलिए यूजुअली इसको जब कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, x2 प्लस, तो x2 आ गया प्लस ये पार्ट है, तो कितना डिफरेंस बचा, x3 और वैल्यू है माइनस उसमें से x2 करो, और कितना पार्ट है, तो 0.6, मतलब इसको क्या है 60 डिवाइड बाई 100 पार्ट। तो ये लिखेंगे तो आपको जो मिलेगा आंसर वो x.26 आएगा। ठीक है। जी सर, पर सर यहाँ पे हमको पता था कि सर पॉइंट के बाद 6 है, तो इसीलिए हमने 60/100 करा ना। हाँ, लेकिन आप जनरल मुझे बताओ तो मैं जनरल का आपको लिख के बताता हूँ। क्या सर? आप यहाँ जैसे आपने 2.6 कहा मुझे कि 2.6 आया तो ऐसे लिखना है, तो आप मुझे जनरल का बताओ, मैं जनरल का प्रोग्राम बताता हूँ कैसे करना है। यूजुअली आप फॉर्मूला कौन सी यूज करते हैं, ओड वाली में तो ये 2.6 वगैरह आ रहा है, आ सकता है। जी सर। जी सर। ठीक है। तो वी डोंट नो आप एन की वैल्यू क्या ले रहे हो उसके ऊपर है। जैसे एन आपने 9 लिया और आप बात कर रहे हैं कि 10th परसेंटाइल, तो व्हाट इज द 10th परसेंटाइल, तो आपको ये कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा n1/n+1/100 इंटू 10, तो ये 10th परसेंटाइल, तो n कितना है 9+1 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया इक्वल टू तो फर्स्ट 1 ऑब्जर्वेशन। आएगा सर। तो x(1) करेंगे तो आपको सीधा मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब आपको कुछ जी नहीं सर। करना है, ये जो ऑब्जर्वेशन आया दैट इज योर परसेंटाइल। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि वो फ्रैक्शन हुआ तो क्या करेंगे, वही है ना आपका। तो हमें कैसे यस। पता चलेगा यस कि सर। कौन सा फ्रैक्शन है। अब वो आप n की वैल्यू एंटर करो। तो दो चार सर ऐसे अगर पॉइंट आप रखेंगे उसके ऊपर से जनरलाइज होगा, सीधा तो नहीं समझ में आएगा। सर अगर सर अगर हम n इक्वल टू 5 ले और p इक्वल टू 20th परसेंटाइल ले, n तो इक्वल सर टू p की 5, वैल्यू आएगी 1.2। तो ये आएगा की 5 वैल्यू आएगी सर 1.2, तो जो हमारा परसेंटाइल आएगा वो 1.2 1.2 ऑब्जर्वेशन। तो ये x(1) प्लस x(2) माइनस x(i) और सॉरी 1 इंटू 0.2। तो आप ये, अब ये इसमें तो ऐसा है कि वो 0.2 आ रहा है इसलिए। ठीक है यहाँ पे, तो जनरल सेटअप में ऐसा यस हो सर। गया कि i+1 माइनस x(i) इंटू p। ठीक है। अगर ये क्या हुआ कि अगर आपका जो पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, 0.2 वाला कोई भी पार्ट है, पर यहाँ पे आई आपको देना पड़ेगा पहले, कौन सा आई है। जी सर, यहीं पे सर मैं अटका पड़ा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप एक प्रोग्राम लिखो वैसे, जैसे कि आपने कोई एक डेटा लिया है, जैसे n यस इक्वल टू सर। आपने 10 लिया। ठीक है। तब आपकी इवन नंबर से तब परसेंटाइल की फॉर्मूला क्या है, ये वाली काम नहीं लगेगी, n1+y वाली, ये ओड के लिए है। यस सर। इवन के लिए फॉर्मूला है, फिर आप उसमें से क्या करने का, कोई केस ले लेना है, कभी p इक्वल टू 0.2, p इक्वल टू 0.5 एंड p इक्वल टू 0.75, ये लो, और आपको उसमें पता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो वो आप कैलकुलेट उस हिसाब से करके दो।
डोंट गो विथ जर्नल, ठीक है, जनरल में मत चलो। इज दैट ओके? जी सर, तो मैं मेरे हिसाब से कोई भी हाँ चलेगा, परसेंटाइल लेके कर लेकिन लूँ। आपको, हाँ आपको ये करना है कि एन इवन होना चाहिए और एन ओड होना चाहिए। तो आपको जो इफ लूप में डाल के कर सकते हैं, आप बता रहे थे कैसे पता चलेगा। तो हाँ इफ सर, एन वो तो मैंने सर कर दिया सर। परसेंटेज इक्वल टू 0 सर। जीरो, तो इसका मतलब है कि ये इवन है। इवन है तो फिर आपकी फॉर्मूला वैसे लगाओ, ये ब्रैकेट में, एल्स जी सर। ऑड पार्ट में, ठीक है, ओके। एनीवन मोर? यस सर। बोलो। सर मेरा फिटिंग का बताया ना सर, फिटिंग ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो आपने भेजा ही नहीं मुझे, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा? मैंने आपको बोला था लिंक भेजो, आपने बोला हो गया। यस सर। नहीं हुआ नहीं सर, बोला मैं बोला कि किया नहीं है अब तक। आपका मैसेज में बताओ क्या लिखा है। आई विल डू इट अगेन बोला सर मैंने। आई गॉट इट फ्रॉम गूगल सर, नाउ आई विल सॉल्व इट अगेन। बराबर, तो मैंने आपको यस इसलिए तो सर। बोला कि मुझे लिंक भेजो, यस सर। तो आपने कहाँ भेजा? मैं सीधा कैसे लिंक बताऊँ आपको? सर मेरे को मतलब आइडिया ही नहीं आ रहा है सर, एग्जैक्टली क्या करना है उसमें। तो आप, मैंने क्या लिखा था, सेंड मी लिंक एंड एग्जाम्पल विच यू सॉल्व मैन्युअली। यस सर। उसके बाद आपका जवाब है आई गॉट इट फ्रॉम गूगल सर, नाउ आई विल सॉल्व इट अगेन। उसके बाद आप आए ही नहीं। आप मुझे यस। बताओ क्या एग्जैक्टली उसकी प्रोसीजर क्या है, बताओ तो मैं आपको बोलूंगा ना। नहीं सर, वही प्रोसीजर में ही प्रॉब्लम है सर। तो आप बोल रहे हैं ना आपको गूगल से मिल गया। नहीं सर, गूगल से प्रोग्राम मिला था ऐसे बोला था। प्रोग्राम का मुझे क्या था, मैंने क्या लिखा था, एग्जाम्पल यस सर। मैन्युअली जो आपने सोल्व किया वो भेजो। यस सर। तो वो मुझे भेजो पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर। ओके सर। अदरवाइज तो यूजुअल कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग की प्रोसीजर आई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट से करते हैं हम। तो मैंने लास्ट में बताया था कि हेलो सर। हाँ यस, तो लास्ट टाइम जो बताया था कि काई स्क्वायर आपको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूज करते हो, तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज y minus ei whole square upon pi, where ei is the expected frequency n into pi, ठीक है, एंड ऑब्जर्व यस सर। फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहता है, दिस इज गिवन ओ आई। अब पी आई यस सर। आपने सपोज जो भी है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने बताया था कि आपको इसका यूज करना है एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। बट यहाँ पे एन आप जानते हैं, पी इज अननोन, तो हमने आपको बताया था कि क्या करो, समेशन ओ आई एक्स आई अपॉन समेशन ओ आई, तो ये आपको क्या मिलेगा, एक्स बार मिलेगा। और बाइनोमियल में एक्स बार क्या है, एन पी कैप है, तो विच इम्प्लाइज पी कैप क्या होगा। एक्स बार अपॉन एन। हाँ तो ये मिल गया एक्स बार अपॉन एन, तो यू विल गेट साइमल्टेनियसली क्यू कैप इक्वल टू वन माइनस पी कैप। यस ये सर। मिला तो यू कैन गेट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इट इज ए p रेस टू x, दैट इज p रेस टू जीरो, तो ये मिलेगा q रेस टू n। यस। q कैप आपको यहाँ से n आप जानते हो, तो p जीरो मिल गया, तो p जीरो मिला, तो विच इम्प्लाइज यू कैन इजीली गेट दी e zero। व्हाट इज द e zero? e zero इज n into p zero।
O0 आपको दिया है, O0 इज नथिंग बट इट इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी व्हेन x इक्वल टू 0। यस तो सर। आपको PI कैसे मिलेगा? तो रिकरेंस फॉर्मूला यूज करना है, n माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 P बाई क्यू या Q बाई सर P। मेरा सर एफ का है। मुझे एफ का इसलिए तो आपको बोला कि ये मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ एक डिस्ट्रीब्यूशन की। आप जब मुझे एग्जाम्पल और वो भेजेंगे तभी मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है? सर ये मैं जनरल बता रहा हूँ कि यूजुअली ये बाइनोमियल का ओके आपको बता ओके रहा हूँ कि ऐसे कर रहे हो, वैसे एफ में जाना है, लेकिन आपने एग्जाम्पल ढूंढा ही नहीं है तो कहाँ यस से सर। होगा? यू शुड कम विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सर मैं फिर सर नॉर्मल का ले लूँ सर। फिर हाँ, नॉर्मल हेलो का सर। लिया फिर क्या करेंगे? नेगेटिव तो होता नहीं है डेटा एफ का, नॉर्मल। नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो लाइकवाइज यू हैव टू कैलकुलेट। यहाँ से n इंटू पी एक्स प्लस 1 मिला, दैट इज कॉल्ड ई एक्स प्लस 1। फिर उसमें रखो फॉर्मूला में, यू विल गेट। तो सिमिलरली यहाँ पे आपका एफ यस डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ देयर इज ए एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ क्या है पता है आपको? यस सर। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको एम एन एन चाहिए। यस सर टू एम टू एन एन वेरिएबल्स। आपके पास नॉन है, यस सर। तो वो डेटा ऐसा कौन सा है कि जिसमें एम एन एन दोनों नॉन है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द m इक्वल टू दिस एंड n इक्वल टू दिस? कैसे पता चलेगा? मैं वो आपको बता रहा हूँ। इफ यू गिव मी दिस एग्जांपल, तो क्या है कि सेम वे आप निकाला, ये f का आपको मिल गया तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यस सर। ये प्रोबेबिलिटी मिल गई तो ये आपके पास क्या है? टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो n इंटू इसके स्पेसिफिक ग्रुप में फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? तो ये जो आएगा वो आप व्हाट आई एडवाइस, इसको आप है chi स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट की जगह से कॉल्मोगर और स्मिंड्रो का भी मैंने किसी को प्रोग्राम दिया है। यू ट्राई टू फिट यूजिंग केस्ट। कॉल्मोगोरो। हाँ, एक मिनट चालू रखिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ, हाँ तो वांधो नहीं, 4:30 સુધીમાં આવી જઈશ। ચોક્કસ। તો પછી પૂરું કરી દઈશ 4:20 સુધીમાં। 4:30 નો ટાઈમ આપો। हाँ वांधो, हाँ वांधो नहीं। हाँ हाँ ओके, ठीक है। तो यू कैन ट्राई कॉल्मोगोरोव स्मिंड्रो टेस्ट। उसमें आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन का करो। जैसे ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो काई स्क्वायर से ज़्यादा अच्छा रहेगा कॉल्मोगोरोव स्मिंड्रो टेस्ट। किसी को नॉर्मल दिया है तो उनको भी वैसे ही करना है, ठीक है? उसमें यस सर। आपको डी प्लस एंड डी माइनस कुछ निकालना है, इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है? यस तो सर। वो जब तक प्रोग्राम कब होगा? जब आपके पास जब एक, एग्जाम्पल है। हाँ, एग्जाम्पल से एक सॉल्व किया है तो उस हिसाब से, जैसे अभी बार्टलेट का उन्होंने फॉर्मूला दिया तो मैंने बताया कि इसको प्रोग्राम कैसे लिखना है, यस सर। ठीक है? चलो, सर मैं नॉर्मल का ले लूँ क्या सर? नॉर्मल के एग्जाम्पल है मेरे पास। कोई भी पॉजिटिव स्क्यूड डेटा ले लो, यस सर। और इवन नॉर्मल का आप लेंगे, ठीक है, हाँ लेकिन हाँ सर। उसमें डेटा पॉजिटिव डेटा लो। हमें तो यस फिटिंग करना है ना, नहीं होगा फिट, हाइपोथेसिस सर। रिजेक्ट होगी कि डेटा डज नॉट फिट वेल टू द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स ऑल। लेकिन प्रोग्राम यस बनेगा ना अपना। यस सर। और लेट मी एड यू वन थिंग,
कि आर के अंदर कई सारी चीजें आप सीधा कमांड के बेस पे मिल सकता है, लेकिन जब आर में आपको नया एक फंक्शन डेवलप करना होता है ना, तब ये जो अभी आप सीख रहे हैं ना वो सारा उसमें करना पड़ता है, तब जाके आर में एक नया फंक्शन आता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस और नो? ठीक है, तो आप खुद के प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे कि नया कोई डिस्ट्रीब्यूशन आया, somebody has suggested, अब उसका कोलमोगोरोस विंडो टेस्ट मुझे करना है तो नहीं है, तो देन आई हैव टू राइट द कोड। तो आर में आप जैसे इसमें C++ में कोड लिख रहे हैं, उसके थोड़ा सिंटेक्स अलग रहेगा आर में। मैं कमांड बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ आर में। तो जितना आप फोकस C++ में करेंगे उतना ही आर आपका बेहतर बनेगा। ठीक है, मार्केट में फंक्शन कमांड बेस प्रोग्रामिंग जानते हुए ऐसे आर लोगों की ज़रूरत नहीं है। दे आर लुकिंग दी हार्डकोर प्रोग्रामर कि भाई मेरे पास नया प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव है, मुझे उसको कोड करना है, आर यू एबल टू कोड इट? तो दैट इज द पार्ट ऑफ ए डेटा साइंस। और हम प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं करते, अपना स्टेटिस्टिक्स अच्छा है, इसलिए हमारी जॉब कौन खा जाते हैं? कंप्यूटर साइंस वाले। दे आर लर्निंग लिटिल बिट स्टेटिस्टिक्स एंड देन दे गेट द जॉब। इसलिए आपको इसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी बहुत सारी। यस, बताइए नेक्स्ट। सर हेलो हाँ बोलो। सर, मेरा भी फिटिंग वाला ही है। चाइस ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके चाइ स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करना है सर। बराबर। तो क्या हुआ? नहीं हुआ? नहीं सर, उसका प्रोग्राम नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब आप मैथमेटिक्स दो, मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ। बताओ ट्रंकेटेड का इस क्या है? पहले सर उसमें इंटरवल फाइंड करते, प्रोबेबिलिटी हम्म, सर पहले उसमें इंटरवल फाइंड करते, p इज इक्वल टू 1/k। आपका आवाज़ बहुत धीरा आ रहा है। हेलो हेलो सर, हेलो अभी आ रहा है सर? हेलो। हेलो हाँ अभी बोलो। हेलो सर, p इज इक्वल टू 1/k। हेलो 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 सर। हेलो। Am I audible? यस सर। हेलो यस सर। हेलो। हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो सर, बोलो। आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो सचिन। सर p इज इक्वल टू 1/, पहले इंटरवल इसमें लेकिन फाइंड कर। आपका आवाज़ धीरे क्यों आ रहा है सचिन? थोड़ा जोर से बोलो। सर नेटवर्क इश्यू की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है सर। बोलो। हेलो हाँ बोलिए, प्रोसीजर बताइए। सर, स्टेप 1, पहले हम्म इंटरवल फाइंड करते हैं हम लोग, इसमें p इज प्रोबेबिलिटी फाइंड करते, p इज इक्वल तो टू पहले तो प्रोबेबिलिटी बताइए आप। इसको ट्रंकेटेड है तो एफ एक्स, बोलिए उसका फॉर्म। सर लेमडा इंटू ई रेस टू माइनस लेमडा एक्स। ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रंकेटेड कहाँ हुआ? ये तो एक्सपोनेंशियल की है। हाँ सर। तो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल? क्या है? दिस इज पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल where x is greater than 0, lambda greater than 0। तो पहले आपको चाहिए ट्रंकेटेड की पीडीएफ, यस तो वो बताइए। हेलो। हेलो सर। हाँ वो बताइए ट्रंकेटेड की पीडीएफ यस क्या सर, है? जी एक्स अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो ये आप जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं ना ट्रंकेटेड की। यस सर। जी एक्स इक्वल टू नहीं, जी एक्स अपॉन जी एक्स अपॉन एफ बी, एफ फंक्शन ऑफ एफ एफ माइनस फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ
x minus A function of B minus function of A. b minus a. What is b here? b क्या है, a क्या है? बोलो। सर इंटरवल से सर A और B। हाँ, ए और बी इंटरवल है, लेकिन कहाँ से कहाँ का? कुछ आपको वैल्यू रखेंगे, जैसे ऊपर का फंक्शन फॉर्म है तो gx क्या लिखेंगे वहां पे? व्हाट इज gx? मतलब सर वो जो X है A और B के अंदर लाई करता है। वो बराबर है कि x इज लाइज बिटवीन a टू b। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, ऐसा लिखे हम इसको, लेमडा ई रेस टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन, आप ऐसा कहते हैं कि मैं इसको ऐसा लिखूँ, लेमडा ई रेस टू माइनस लेमडा बी, अपॉन लेमडा ई रेस टू माइनस लेमडा ए, ऐसा बोल रहे हैं? इट इज ई रेस टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन e raised to minus lambda b minus e raised to lambda a. Are you saying that? यस सर। तो ये आपकी पीडीएफ है एक यस सर। अंकित, पक्का? सर नीचे 1 माइनस। एक काम करो, आप मुझे वो जो आपकी प्रोसीजर आपने लिखी है ना मैन्युअली, ठीक है, उसका मुझे एक स्नैप निकाल के भेजो। आई विल लेट यू नो इन द आंसर इन दैट, या आप ग्रुप में रखो। सर अभी? अभी नहीं, ओके। बाद में। ओके यस सर। ओके। तो मतलब कि ये जितने भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाले उन सबको प्रॉब्लम है, ऐसा हुआ ना फिटिंग का? हेलो? यस यस सर। सर। हाँ, तो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट वालों को प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअस वालों को ही प्रॉब्लम है। और कंटिन्यूअस में काई हाँ, स्क्वायर सर। गुडनेस ऑफ फिट में आपको जैसे वो बताया कि आपके पास रो डेटा है तो आपको उसको पहले ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस में दिया होगा रो डेटा, तो आपको पहले उसको ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगी, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप यस मुझे सर। प्रोसीजर कोई भी एक भेजिए, मैं उसका आपको आंसर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू सबका हो जाएगा। ओके सर। चलो नेक्स्ट। तो मतलब बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? सर मैं सर थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर मेरे। बोलो। सर आपने जैसे कि बोला कि आप पी की वैल्यू लेके लास्ट में प्रोग्राम कर दो, हम्म तो सर आपको पी की पता वैल्यू तो चलेगा ना, सर आपने कंप्यूटर एन निकालेगा एन ना सर? एन आपने फिक्स कर दिया ना, पी आप दे रहे हैं ना, कितने परसेंटाइल ले रहे हैं वो तो आप ही दे जी रहे हैं सर ना, 20। तो यस 20 सर। दे रहे हैं तो आप पी पहले से डिफाइन कर रहे हैं। यस एन आप सर। दे रहे हैं तो आपको पता है कि कौन से ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आएगी, कि एक्स 1.2 है, 2.5 है, क्या है वो आपको पता है। उस हिसाब से आपको प्रोग्राम में उतना, जैसा मैंने लिखा था x1 प्लस, वैसे आपको मैन्युअली उसमें देना पड़ेगा। इट इज नॉट ए सर जनरल। मैं सर मैं परसेंटाइल की वैल्यू देता हूँ ना सर, कि मुझे 28 परसेंटाइल वाली वैल्यू चाहिए, तो सर वैल्यू तो वो कैलकुलेशन के आपको, बाद आती है ना? हाँ तो 28 की चाहिए तो एन, अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके क्या दिया, p इज नथिंग बट 20th परसेंटाइल। अब यस आपको सर। वैल्यू निकालनी है, पता चला कि वो 1.2 आप करेंगे ऑब्जर्वेशन की, तो 1.2 ऑब्जर्वेशन वैल्यू विल बी योर 20th परसेंटाइल वैल्यू। तो इसलिए आपने क्या किया, x1 प्लस x2 माइनस x1 इंटू 20/100, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, x ऑफ यस सर। 1.2 का आंसर हुआ ना, मैं वो बता रहा हूँ। यस सर। ओके।
So now this is the last questions I will take. Any more questions, anyone? No questions?